Hello everyone. This is the second part of geography previous year questions from the year of IS Prelims 1993. Okay, last class we have seen the first part, so today we'll complete 1993 questions. Okay, so let's see remaining questions. Okay, so we'll see here which of the following places have their standard times that are same as GMT. Okay, Greenwich Meridian Time. Accra, Dublin, okay, Madrid, Lisbon. Okay, so we have to choose the correct answer. Okay, so they are asking have their standard time are same. Okay, किसका किसका सेम होता है स्टैंडर्ड टाइम. सो ऑब्वियसली देखिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के जो अलॉन्ग जो भी कंट्रीज जो सिटी होंगी ओके उसके टाइम सेम होंगे. सो अब इसमें देखिए जो हमारा अक्रा है, डबलिन एंड मैड्रिड ये तीनों के जो हैं सेम होंगे. लिस्बन you know that okay is not on the line of GMT, so for this time will not be same, so the answer is A, but rest 3 is correct. Okay, next, in Mizoram the settlement pattern is mostly of linear type along the ridge because the valleys are cooler than the ridges. Accessibility is easier on the ridge tops. The ridges are older than valleys. The valleys are densely forested. Okay. So they are asking in Mizoram the settlement pattern is mostly of linear along the ridges because the reason is this for in Mizoram is the valleys are cooler than the ridges. This is the main reason. Okay, so the answer is A. अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, तो जो है that is the answer. Okay, next, soils of western Rajasthan have a high content of aluminium, calcium, nitrogen, phosphorus. Okay, so western region they are asking in the Rajasthan what type of soil is, I mean which content is the highest. तो देखिए जो soil of western Rajasthan have highest content of calcium, no not calcium, it's phosphorus. Okay, answer is D. Next, a rainy day as defined by Indian Meteorological Department is a day when the rainfall at a point received is. Okay, मतलब इंडिया में जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ओके अ डे व्हेन रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव, मतलब रेनी डे कब बोला जाएगा. ओके, सो मतलब हाउ मच वाटर रेनफॉल हैज़ बीन डन, then we'll say the rainy day. Okay, that they are asking. So out of this, like 0.5 mm to 1 mm, 1.1 mm to 1.5 mm. अब देखिए एक दिन में पूछ रहा है 24 आवर्स, 1.6 to 2 mm, 2.5 mm, above 2.5 mm. ठीक है, तो ऑब्वियसली रेनी डे में ज़्यादा बारिश होनी चाहिए. सो विच वन इज़ करेक्ट. अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो रेनफॉल ये 0.5 mm to 1 mm और 1.5 mm to 1.1 to 1.5 mm और 1.6 to 2, this rainfall is not called, I mean इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर above 2.5 है तो रेनी डेज में क्या होगा ना, ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, ऐसे रैंडम कभी बारिश होती है तो दैट कैन नॉट बी मोर देन 2.5 mm 24 आवर्स में. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी. नेक्स्ट, which among the following pairs of places have
marked difference in total rainfall per annum even though located approximately along the same latitude. Okay, Bangalore, Madras, Bombay, Visakhapatnam, Ajmer, Shillong, नागपुर एंड कलकत्ता. ओके, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर प्लेसेस हैव मोस्ट मार्क डिफरेंस इन टोटल रेनफॉल पर एनम इवन दो लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग द सेम लैटिट्यूड. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो चारों पेयर्स दिए हुए हैं इसमें से किस में जो एनुअल रेनफॉल है उसमें डिफरेंस है, इवन दो दीज मतलब वो दोनों जो भी ऑप्शन है वो एक ही लैटिट्यूड में है. ओके, तो इसमें जो है हमारा अजमेर एंड शिलोंग. ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अजमेर आपको पता है ना राजस्थान में है, राजस्थान में उसका जो जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे बारिश कम होती है. ठीक है, शिलोंग में ज़्यादा होती है. ओके, सो अब देखिए उसमें सेम लैटिट्यूड में होने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ का जो लोकल जोग्राफी है दैट आल्सो मैटर्स. ठीक है, राजस्थान आपको पता है पूरा डिजर्ट एरिया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है, शिलोंग में ज़्यादा होता है. दैट आंसर इज सी. ठीक है, तो सेम लैटिट्यूड में होने से मतलब नहीं है, लोकली उसका जोग्राफी कैसा है दैट आल्सो मैटर्स. ठीक है, वहाँ तक मानसून पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है. ओके, वहाँ पे हिल्स है या नहीं है, लीवर्ड साइड में है या फिर जैसे होता ना कि आपका जो कोई भी पहाड़ी है, कोई हिल्स है, एक साइड मतलब जैसे आप वेस्टर्न घाट को देखो. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में क्या है, एक साइड में समंदर है, दूसरे साइड में जो भी स्टेट है मतलब तो पूरा आपका स्टार्ट होता है उधर गोवा साइड से पूरा नीचे तक आता है. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सी साइड में वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. ठीक है, दूसरे साइड में कम होती है क्योंकि उसके हाइट की वजह से उधर की तरफ में दूसरे साइड में वो जा नहीं पाता है. ओके, तो अब राजस्थान में वैसा कुछ नहीं है कि कोई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं कि वहाँ पे भी मानसून आ रहा है कि उसकी वजह से रुक गया और दूसरे साइड एक ही साइड में बारिश हो गई, ऐसा नहीं है. ओके, सो इट्स अ डिजर्ट एरिया, सो दैट्स वाई इन अजमेर or you can say in most of part in Rajasthan there is very less rainfall, but in Shillong is more. Okay, so the same thing I have already mentioned that the local condition, I mean local geography also matters even though if it is in same latitude. Okay, so the answer is C. Next, which one of the following was the part of erstwhile Soviet Union over which Kurdish population is spread? ओके, अभी देखिए ये चीज़ 4-5 साल पहले भी न्यूज़ में थी. उस टाइम ये 1993 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, करंट अफेयर में कुछ ना कुछ चल रहा होगा. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन आस्क्ड. सो अर्मेनिया कुर्दिश पॉपुलेशन का वेयर दे हैव स्प्रेड. अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान. ओके, सो अगर आप न्यूज़ ट्रैक कर रहे होगे तो इसका आंसर आप कर सकते हो. सो इट इज़ एक्चुअली अर्मेनिया. ये जो कुर्दिश पॉपुलेशन ये स्प्रेड जो है वो अर्मेनिया में है. ओके, सो द आंसर इज डी, सॉरी ई. नेक्स्ट, द नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाय गोंडवाना कोल, टर्सरी कोल, क्वाटरनरी कोल, कैम्ब्रियन कोल. ओके, अब इसमें देखिए इसमें टर्सरी कोल यूज होता है. ओके, सो द आंसर इज बी. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आंसर इज बी. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज एंड रिसोर्स प्रोड्यूसन, इंडिया विल रिमेन्स द सेल्फ सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 3 decades in 10 कुकिंग कॉयल, कॉपर, पेट्रोलियम. अगेन देखिए ये 1993 का क्वेश्चन है, तो ये प्रेजेंट स्टेट की बात बोला. प्रेजेंट स्टेट मतलब उस टाइम की बात कर रहा है. ठीक है, इज रिमेन सेल्फ सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 3 decades. ठीक है, अगले 30 साल के लिए बोल रहा है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है. तो उस टाइम के हिसाब से ओके, सेल्फ सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 3 decades वाज द कॉपर. ठीक है, अब
ऐसा क्वेश्चन अगर प्रेजेंट टाइम में आता है, क्योंकि ऑलरेडी 1993 30 ईयर ऑलमोस्ट 20 मोर देन 30 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया है ना, 31 ईयर्स। सो अब प्रेजेंट टाइम में ऑप्शंस बदल सकते हैं, तो यू हैव टू मार्क एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट, a fertile soil suitable for growing common crops is likely to have a pH value of 3, 4, 6 to 7, 9 to 10। देखिए, जो फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, suitable for growing common crops is likely to pH value 6 to 7 होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक नेचर उसका होना चाहिए, आई मीन क्लोजर टू, आई मीन 7 के ऊपर फिर बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो क्लोजर टू, आई विल नॉट से बेसिक, बट या क्लोजर टू बेसिक यू कैन से दैट। सो इट इज़ एक्चुअली 6 to 7, ठीक है। सो द आंसर इज सी। Okay, so this is the end of 1993 questions. Next class I will come up with the 1994 question. Till that I have split the parts because I thought there is a lot of questions is given. So, but I'm thinking from the next class I will try to make 1 year question in one lecture. Okay, but still if there is some variation will require, I will do that. Okay, so thank you for watching. Bye bye.